Hello students, let us continue our chapter, that is chapter number 4, carbon and its compound. In the previous chapter we have studied about the sharing of electrons, that is formation of covalent bond. Now today we are going to start with the allotropes of carbon. So allotropes, इनके कार्बन के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नेचर में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो नेचर ने इन्हें खुद अपने तरीके से बनाया है और ये मोस्टली जो जनरली है वो है डायमंड, ग्राफाइट एंड थर्ड वन इज बकमिन्स्टर्स फुलरेन. सो कार्बन occurs in different forms of nature widely varying physical properties. So इनके physical properties, structures, सब चीज बहुत डिफरेंट है. भले ये कार्बन के बने हैं लेकिन इनके प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in manner in which the carbon atoms are bonded to one another. So भले ही कार्बन के बने हों लेकिन ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका. अगर ये सिंगल बॉन्डेड हैं तो इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, कितने कार्बन है इसके अंदर, किस तरीके से जुड़े हैं, तो इन सब के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है. फॉर एग्जांपल इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये आपको पता ही है, एक्स वाई जेड. दिस इज 3 डायमेंशनल. यहाँ देख सकते हैं आप. ठीक है, तो ये 1 कार्बन के 4 वैलेंसीज होती है, ये 1 सेटिस्फाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक के ऊपर एक ये बना रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और ये हार्डेस्ट मटेरियल है जो अभी तक धरती पर पाया गया है. ग्राफाइट, ठीक है, ये एक कार्बन एटम जो है वो 2 अलग, यहाँ पे 3 अलग एटम से जुड़ा हुआ है. ये आप यू कैन सी दिस इज 1, 2 एंड 3. ओके, 3 carbon atom. 1 carbon atom is joined to the 3 other carbon atoms. So here we know that carbon has 4 valencies. Okay, so here the one is not satisfied, means there is a double bond in any of the 3 bonding. ठीक है, तो 4 बॉन्डिंग कैसे सेटिस्फाई होगी, यानी कि किसी एक के साथ इसका डबल बॉन्ड होगा. तो अब डबल बॉन्ड होगा तभी इसका वैलेंसी सेटिस्फाई होगा. क्लियर. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे. यू कैन सी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वन ओवर अनदर. ठीक है, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 3 यहाँ पे ज्वाइंट है, इसके नीचे सिमिलर वही पैटर्न बना हुआ है, एक के नीचे एक. ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड है. वन ऑफ दिस बॉन्ड इज द डबल बॉन्ड. यू कैन सी इनमें से कोई ना एक तो डबल बॉन्ड होता है. And thus valency of the carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layer one over the another. So this is one layer, this is second layer, one over another. These 2 different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same. Okay, chemical properties are same because they are both contains the carbon, but their physical structures and properties are very different from one another. Physical properties, even though their chemical properties are same. Diamond is the hardest substance known while graphite is smooth and slippery. So you can see this is graphite. Graphite is also a very good conductor of electricity, unlike other non-metals that you studied in the previous chapter. That we know that it is an exceptional case that this lead of pencil, that is it is made up of graphite and it can conduct electricity. Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. Okay, so we know that generally diamond occurs in nature under high pressure and temperature. Clear, but we can also make it in our lab under high pressure and temperature, but these diamonds have a small structures. Okay, their size are small but they are very similar to that of the natural diamond. Now fullerene forms another class of carbon allotropes. So next one is
फुलरीन एक ऐसा एलोट्रॉप है जो फर्स्ट टाइम बकमिनिस्टर फुलरीन ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। और जब ये एक बॉल शेप में पाया गया था और इसके अंदर 60 कार्बन के कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 60, ठीक है। सो कार्बन के 60 कार्बन इसके अंदर अटैच्ड हैं, टोटल 60 हैं। तो ऐसे और भी होते हैं जिसमें ये कार्बन का नंबर चेंज होता है। और ये फुटबॉल शेप है या कह सकते हैं कि डोम शेप है, ठीक है। दिस इज डोम शेप, तो ये डोम शेप है और इसे बकमिनिस्टर फुलर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम फुलरीन रखा गया है। Now the versatile nature of carbon. We have already talked about the versatile nature of the carbon. Okay, so there are millions of compounds that are formed by the carbon. Okay, carbon element. बहुत सारे elements हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स है जो कि कार्बन से बनते हैं। हमने इसके बारे में पहले बात कर ली है, सो फिर से देख लेते हैं वंस अगेन। कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म a compound with a large atom of carbon, ठीक है। सो बहुत सारे कार्बन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। सो हमने ऑलरेडी देखा है कि कार्बन जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्बन से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, और इसे कहते हैं कैटिनेशन। क्लियर। लॉन्ग चेन बना सकता है, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, ठीक है। और रिंग फॉर्म में भी अरेंज हो सकता है। इसके साथ ही ये एक सिंगल बॉन्ड में जुड़ सकता है दूसरों से, डबल बॉन्ड के साथ और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। सिंगल बॉन्ड कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है ये कार्बन के अलावा दूसरों से भी जुड़ जाए, क्लियर है। तो ये किसी के भी साथ जुड़ सकता है। सिर्फ केस क्या है कि आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन के साथ, ये अदर एलिमेंट्स के साथ। फिर ये डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन देता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी थर्ड 1 2 3 1 2 3 4, तो ये जो किसी भी एलिमेंट्स के साथ अगर बना रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना के क्या करता है, कंपाउंड को स्टेबल करता है। देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय वन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। सो जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं उन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड यानी अभी कमी है, ये अगर बॉन्ड ये थोड़ा सा ये स्टेबल होता है, सिंगल बॉन्ड काफी स्टेबल होता है, डबल थोड़ा सा कम होता है और ये बहुत कम होता है। तो जैसे ही इनको ये बॉन्ड तोड़ने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो तोड़ के सिंगल, क्योंकि ये सबसे स्टेबल है, तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो स्टेबल पोजीशन में आ जाए। तो इसलिए जैसे ही उनको कहीं रिएक्शन करने का मौका मिलता है, सिंगल में कन्वर्ट होने का मौका मिलता है, वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों को कहा जाता है अनसैचुरेटेड एंड दिस वन इज सैचुरेटेड। नाउ नो वन, जैसे कि हमने पहले भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन 6th 7th में भी पढ़ा है, 8th में पढ़ा है कि सैचुरेटेड का मतलब जनरली होता है कि जिसमें हम और ज्यादा एडिशन ना कर सके, ठीक है, फाइनली हो गया है। अगर पानी में भी हम शक्कर डाल रहे थे, शक्कर कब तक, एक वक्त पॉइंट ऐसा आता है जब और उसमें शक्कर नहीं घोली जा सकती, यानी अब उसमें एडिशन नहीं हो सकता है, दैट इज अ सैचुरेटेड पॉइंट। तो अब ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। अब ये चारों अलग अलग से जुड़ गए हैं, सिंगल बॉन्ड हो गए हैं, तो अब इसमें इससे ज्यादा एडिशन नहीं हो सकता, दैट इज सैचुरेटेड पॉइंट। लेकिन यहाँ क्या है, ये इसको करके हटा के ये किसी और के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, दैट इज अनसैचुरेटेड, दिस वन इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड। ना यहाँ पे जितना कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कार्बन शो कर सकता है, उसके अलावा और भी हैं जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जितना कार्बन दिखा सकता है उतना कोई और एलिमेंट्स नहीं शो कर सकता है। सिलिकॉन कंपाउंड
with hydrogen have chain of up to 7 or 8 atoms. So silicon 7 to 8 atoms तक यहाँ पर बॉन्डिंग दिखा सकता है सिलिकॉन के एटम के साथ, बट दिस कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, बट ये काफी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है काफी स्टेबल होता है और इसलिए ये कार्बन के लॉन्ग चेन एटम बना सकते हैं। ठीक है, और जो कि स्टेबल होते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, और ये आराम से यानी कि कार्बन एटम के साथ या तो किसी और के साथ मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड एलिमेंट बना सकता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनके साथ ये एलिमेंट बना के, ठीक है, कोई भी कंपाउंड बना के उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कैसी होती है, डिफरेंट डिपेंड करता है कि ये किसके साथ रिएक्शन कर रही हैं, किसके साथ बॉन्डिंग बना रही हैं। ठीक है, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है, तो ये कार्बन ही एक ऐसा है जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो ये काफी स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। One reason for the formation of strong bond by carbon is its small size. So main reason क्या है कि कार्बन का साइज स्मॉल है और इसलिए स्टेबल है। जितने मॉलिक्यूल जितना साइज यहाँ पे बड़ा होगा वो उतना अनस्टेबल होगा, छोटा होगा तो इसकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगी। This enables the nucleus to hold on to shear pairs of electrons strongly, और इस वजह से ये काफी strongly इन्हें होल्ड करके रखते हैं। Bond formed by elements having bigger atoms are much weaker. So इनकी जो बड़े एटम्स के साथ अगर एलिमेंट यहाँ कंपाउंड बना रहा है तो यहाँ क्या होता है, इनके बीच की बॉन्डिंग काफी वीक होती है, जल्दी ब्रेक हो जाती है। लेकिन जो स्मॉलर है एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सो अभी हमने बात की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। ठीक है, तो हमने बताया था जहां सिंगल बॉन्ड है वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, जहां या डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। Let us try to draw. Okay, so methane, कार्बन CH4, फॉर्मूला क्या है मीथेन का, CH4। सो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, हमेशा कार्बन की वैलेंसी से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखा है, 4 हाइड्रोजन, काउंट करो कि 4 हाइड्रोजन है तो किस 1 2 3 4। ठीक है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, सेकेंड वन इज इथेन, C2H6। ठीक है, कितने कार्बन दिया है, यहाँ 1 कार्बन था। ठीक है, यहाँ कितना है 2। सबसे पहले हम कार्बन ड्रॉ करेंगे, 2 कार्बन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, अब इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, 1 तो बनी हुई है, 2 3 4। ठीक है, अब इसकी काउंट करते हैं, इसका भी, अभी ये इसको अभी हम भूल जाएंगे। ठीक है, इस कार्बन का 1 तो बना हुआ है, 2 3 4, क्योंकि ये शेयरिंग कर रहे तो ये इसका भी काउंट होगा, इसका भी काउंट होगा। नाउ H कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। सो दिस वॉज सैचुरेटेड। जहां सैचुरेटेड में आता है आल्केन सीरीज, इसे कहते हैं आल्केन सीरीज। मीथेन, इथेन, इनमें क्या होता है, यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज होता है, साथ में हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सीरीज के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर सेकंड है आल्कीन, आल्कीन सीरीज। ये है आल्केन सीरीज, जिसमें इसमें अभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अभी काफी सारे आएगा, अभी हम देखेंगे। देन सेकेंड इज आल्केन, ये हमने देखा था कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड, इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, नाउ आल्केन अनसैचुरेटेड। ठीक है, सो इसमें है डबल बॉन्ड,
अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड, जब हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल नहीं होता, इस सीरीज में 2 की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया C2H, कितना आएगा, यहाँ पे H आएगा 1 2, तो यहीं पर है 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब इसका तो 2 है 1 2 3 4, ठीक है, इसकी भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ क्या आएगा 4, 2 ही के साथ, 4 के साथ ही और जुड़ सकते हैं, इसके अलावा नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। C2H4, ये है अल्केन। और अल्काइन, एक और सीरीज है लास्ट वन अल्काइन, जिसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये भी कैसा है, अनसैचुरेटेड। इसमें आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड, एन के साथ भी ट्रिपल, एन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एन के साथ, ठीक। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है जो कि अनसैचुरेटेड है। ये अल्काइन सीरीज में नहीं आते हैं, इसमें अल्काइन सीरीज में, अल्कीन या अल्केन सीरीज में, इनमें सिर्फ हम कार्बन को काउंट करते हैं, कार्बन से बने कंपाउंड को, मेन जिसका चेन कार्बन से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अगर इस कार्बन को अभी ना काउंट करें तो यहाँ देखिए इसके 3 वैलेंसी है, 1 बाकी है, ये रहा, यहाँ मैच लगा सकते हैं, ठीक है। C भी लगा सकते हैं और कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं। अब इस कार्बन की भी अगर यहाँ देखा जाए तो 3 वैलेंसी यहाँ दिख रही है, कितनी बची, 1। तो ये क्या है, C2H2, ठीक। ये था मीथेन, ये इथेन, C2 कार्बन 2 था, इथेन था, यहाँ कार्बन 2 है, तो ये हो गया इथीन, क्योंकि इसका मेन ये यहाँ लग रहा है, और ये हो गया इथाइन, ETHYNE, ये इसका सीरीज का यहाँ लग जाता है, ठीक है। Now chain, branches and arrange. So here you can see formula and structure of saturated compound of carbon and hydrogen. ठीक, so here it is given methane CH4. This is the structure. Ethane, this, and this is the structure. So this is a alkane series, single bonding series. ठीक है, this is the structure. So ऐसे ही मीथेन, इथेन, प्रोपन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ठीक है, ऐसे ही ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। इनमें डिफरेंस कितने का है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का, CH2 का इनमें डिफरेंस होता है। इसके इन दोनों के बीच CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच भी CH2 का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे आगे हम नंबर्स बढ़ते हैं, ये जैसा है, इसमें CH2 ऐड कर दिया तो ये बन गया, इसमें CH2 ऐड कर दिया तो ये बन गया, ठीक है, इसमें CH2 ऐड कर दिया तो ये बन गया, इसमें CH2 ऐड किया तो ये बन गया। तो अल्केन सीरीज में जितने इतने का अगर डिफरेंस है तो वो कौन सी सीरीज बन जाती है, अल्केन सीरीज बन जाती है। You can see 2 possible carbon skeletons. So, अगर हमने लिखा है C4, तो C4 इस तरीके से भी जुड़ सकती है, इस तरीके से भी जुड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 पॉसिबल वेज हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इस तरीके से जुड़ गई, ये सिंगल चेन है और ये है ब्रांचिंग। Now, complete molecules for 2 structure with C4H10. So C4H10 ये सिंगल है और ये है ब्रांचिंग, ठीक है। 1 2, ये कितने 4, 1 2 3 4 है ना। तो ये सिंगल हो गया। अगर मैं यहाँ चाहने के बदले अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया होता तो भी चलता, क्लियर है, ये यही बात होती है। तो ये कैसा है, सिंगल है, ब्रांचिंग है। ये क्या है, रिंग शेप में है, ठीक है। अगर हमें C6H12 का बनाना है तो हम सीधा भी बना सकते हैं, जैसे ये है, इसी के आगे हम 2 और ऐड करके हाइड्रोजन इंक्रीज कर देंगे,
वैसे ही अगर हम इसे चाहे तो रिंग फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन काउंट कर लिया और वैलेंसी के हिसाब से फिर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये हो गया, बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन का स्ट्रक्चर दे रहा है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे देखिए, ये सब सैचुरेटेड की हमने बात की थी। यहाँ पे एक बेंजीन है जो कि अनसैचुरेटेड, यहाँ देखो डबल कार्बन आ रहा है, डबल बॉन्डिंग आ रही है, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर, अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। सो हमने बात कर ली यहाँ पे अल्केन सीरीज की, अल्कीन एंड अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ठीक है, डबल बॉन्ड अल्कीन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन containing single bond saturated is alkene. Clear?